This is exercise 2A from D2 7th updated edition, and we'll be talking about question number 2. This exercise is all about direct proportion, and in the exercise the question number 2 says, in a bookstore 600 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. Find the length occupied by 50 such books on a shelf. And we'll be doing it with unitary method as well as with the, I'll be talking about proportion method as well. So this would be your choice to do it with unitary method or with proportion method. So what direct proportion is actually, over here we have two quantities, हमारे पास दो चीज़ें हैं. One is the books one and the other one is the length on the shelf. Like with the increase in the number of books, definitely more space will be occupied on the shelf, and if there are few books, definitely few space will be occupied on the shelf. So what first part of the what given is here, and what we have to calculate. What given is 600 books. We are taking start for the solution. 600 books occupy space or the length, and the books are identical. Definitely with the increase or decrease accordingly, the length of the shelf which is occupied by the number of books will be increasing or decreasing. So 600 books occupy कर रही हैं length 1.5 meter, and we have to talk about कि 50 books जो हैं वो कितनी space occupy करेंगी. So this is given, and to find is 50 books occupy length. So this is unitary method. So we'll take it for one book as well. 600 books occupy length, this one, and one book occupy length. It would be 1.5 divided by 600. इन डायरेक्ट प्रपोर्शन पहले आप इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होता है उसको यहाँ वाले नंबर से डिवाइड करते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो आप डायरेक्ट के डी से डिवीजन को मेंशन कर सकते हो, जहन में रख सकते हो. दिस इज़ लाइक सम साइन टू डू इट. लाइक अब आपके पास वन बुक के लिए स्पेस आ गई, आप इसको यहाँ पे सोल्यूशन कर लो, आपकी चॉइस है. अगर आप इसको कलेक्टिवली सोल्यूशन करना चाहो फॉर 50 बुक्स ऑक्यूपाई द लेंथ, तो अब आपका फर्दर सोल्यूशन ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 600 एंड मल्टीप्लाइड बाय 50. अब आपने 50 के लिए कैलकुलेट करना है तो 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब आप इसका फर्दर सोल्यूशन करेंगे इन दिस वे. The further solution can be done. 1.5 divided by 600 multiplied by 50. 0 से 0 reduce हो गया. Then omit the decimal. It comes 10. Then 5 2 times. And what it becomes? Then with 5 3s are 15. और ये हो गया. And moreover it would be it is 60 books, not 600 books. So I am going to do it, make it 60. So this is not 600. It would be easy for the calculations as well. So it will become, it is 1.5 divided by 60 multiplied by 50. So it is, we will reduce this point, it comes 10. Then with 3, by 4, so it becomes
So finally your answer is coming 1.25. डेफिनेटली जब आपके पास नंबर ऑफ बुक्स कम होंगी तो स्पेस ऑक्यूपाई भी कम हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का यूनिटरी मेथड था। अब अगर हम इफ़ यू वांट टू डू इट विद द प्रोपोर्शन मेथड तो उसका थोड़ा सा मैं आपको आई बी टेलिंग यू द फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला सेज over here, the formula is लाइक अब आपने ये आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं बुक्स के लिए, आप इसको x1 का नाम दे दो और फिर आप अपने क्वेश्चन में बुक्स के लिए इसको x2 का नाम दे दो। मतलब बुक्स जहाँ जहाँ पे हैं उनको x वालों के साथ आपने मेंशन करना है एंड फॉर द लेंथ आप y सपोज कर लो और आपने दूसरी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, वो y2 हो गया। फिर आप इस फॉर्मूला में यूज़ कर लेंगे व्हाट y1 इज़ हियर। पहले यू विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। अच्छा, फॉर्मूला लिखने के बाद आप y1 क्या है 1.5 और x1 क्या है 60। सिमिलरली y2 क्या है, इट इज़ टू बी कैलकुलेट y और फिर x2 क्या है 50। अब आपके पास वही वाली कैलकुलेशंस आ गई एज वी डन विद द यूनिटरी मेथड। 60y with cross multiplication 50 multiplied by 1.5 और फिर उसके बाद फर्दर आप इसको यू विल डिवाइड इट विद 60। अब आपके पास ये यहाँ से रिड्यूस होके 1.25 मीटर आ गया। ठीक है, तो यू कैन यूज़ इवन दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, बट इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक क्वांटिटी को x से मेंशन कर रहे हो तो उसकी दूसरी वैल्यू को भी x2 से मेंशन कर दो। और इसी तरह अगर आप दूसरी क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बुक्स और स्पेस है, तो आपने बुक्स को एक दफ़ा की बुक्स को x1 और दूसरी दफ़ा जो बुक्स का जिक्र स्टेटमेंट में हो उसको x2। इसी तरह लेंथ के लिए आपने अगर y1 रखा है तो उसको पहली वैल्यू को y1 और दूसरी वैल्यू अगर कैलकुलेट भी करनी है तो उसको y2 से मेंशन करेंगे। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स बी पार्ट and I'll be doing it with unitary method. If you want to do it with the proportion method, you can check the formula. So what B part says, or the second part says, the number of such books needed to completely occupy shelf that is 80 meter long. I'll be erasing the first part. We'll be talking about B part of it, the number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 centimeter long. The main statement of the question will remain as it is, like you will start second part with the same statement. In a store 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. Find the number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 centimeter long. अब आपने 80 सेंटीमीटर में कितनी बुक्स फिल इन हो सकती हैं वो आपने यू हैव टू टॉक अबाउट द number of such books you have to mention, but the main statement will be carry on with the second part as well. सबसे पहले तो दिस इज़ इन मीटर, तो आपने 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो you'll divide it with 100, it comes
8 मीटर, ठीक है। और अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्स, और कितनी स्पेस के लिए, कितनी लेंथ के लिए, 0.8 लेंथ के लिए। अब आपने अपने क्वेश्चन में 1.5 मीटर लेंथ से ही अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्योंकि जो चीज़ कैलकुलेट करनी होगी वो आप अपने राइट साइड पे मेंशन करोगे। जस्ट सी द सोल्यूशन विद द यूनिटरी मेथड। 1 जो गिवन मेन स्टेटमेंट है उसी में से आपने लेंथ से अपना क्वेश्चन शुरू करना है। 1.5 मीटर लेंथ is needed for books, that is कितने बुक्स के लिए नीडेड है, 60 के लिए। देन गो फॉर 1 मीटर स्पेस, कितने बुक्स के लिए नीडेड होगी, तो आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डेफिनेटली जितनी स्पेस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बुक्स एडजस्ट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आपने इसको करना है 0.8 मीटर लेंथ के लिए, कि 0.8 मीटर लेंथ में कितनी बुक्स आ जाएंगी, यू विल मल्टीप्लाइड विद 0.8। तो अब इसका डेसिमल पोजीशन एक जैसी है, तो आप इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, लाइक यू कैन राइट इट इन दिस वे। अगर डेसिमल पोजीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो, लाइक इस डेसिमल के बाद आपके पास 1 डिजिट है, इस डेसिमल के पास आपके पास 1 डिजिट है, तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। तो इधर यू रिड्यूस इट और नॉट, इट कम्स सेम। अब आप इसको फर्दर रिड्यूस कर लें। आई एम डूइंग इट विद द 5 टेबल। अब आपके पास आ गया 32 बॉक्स। अब आपने इफ़ यू जस्ट सी द क्वेश्चन, अब आप ये देखें, जब स्पेस कम हो गई, लेंथ कम थी जो ऑक्यूपाई है, डेफिनेटली बुक्स भी कम ही आनी है। तो विद द डिक्रीज इन वन क्वांटिटी द अदर वन इज डिक्रीजिंग, सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने पहले डिवाइड करना है नंबर्स को और फिर मल्टीप्लाई करना है। बट अगर इसका फर्दर भी कोई पार्ट होता तो आपने उसको मेन क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना था, मेन स्टेटमेंट विल राइट इट। और फिर जो वो आपका सेकंड पार्ट था उसमें आपको लेंथ दी हुई थी और आपने नंबर ऑफ बुक्स कैलकुलेट करनी थी, तो आपने अपने क्वेश्चन के मेन पार्ट से पहले लेंथ को मेंशन करके लेंथ से आपने अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना शुरू करना था। और नंबर ऑफ बुक्स कैलकुलेट करनी थी, तो आपने नंबर ऑफ बुक्स को अपने राइट साइड पे मेंशन करना था। जो अगर आपको स्पेस कैलकुलेट करनी होती, लेंथ कैलकुलेट करनी होती, तो आपने अपने क्वेश्चन में राइट साइड पे लेंथ को मेंशन किया था, जैसे फर्स्ट पार्ट में। तो आई एम डूइंग इट्स थर्ड पार्ट एज वेल। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What question number 3 says, it is like you have to calculate increase, आपने कैलकुलेट करना है 30 में, इंक्रीज 30 को करना है बाय 15:26। अब आप इफ़ यू जस्ट लुक एट द रेशो, ये आपके पास स्मॉलर वैल्यू है और ये आपके पास ग्रेटर वैल्यू है। अगर आपने इंक्रीज निकालना है तो आपने करना क्या है कि आपने यू विल राइट द गिवन नंबर, दिस इज गिवन नंबर। अच्छा, आपने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट आप न्यूमरेटर में लिखोगे। ग्रेटर वैल्यू क्या है, 26। G stands for greater value, but no need to mention it in the like paper or the solution. I'm just telling you for your confirmation or for your convenience. और स्मॉलर वैल्यू आपने डिनोमिनेटर में। एवरी टाइम आपने अपनी रेशो में से ग्रेटर वैल्यू न्यूमरेटर में मेंशन करनी है और स्मॉलर वैल्यू आपने डिनोमिनेटर में मेंशन करनी है टू कैलकुलेट इंक्रीज। सो अब आपके पास आ गया इसको रिड्यूस करके 52। सो इट विल बी लाइक मोर क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको डिक्रीज कैलकुलेट करना है।
लाइक डिक्रीज कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने स्मॉलर वैल्यू डिक्रीज इसका, जब आपने डिक्रीज किसी वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो आपका ये प्रोसीजर उसका इन्वर्स हो जाएगा। और ये क्यों इन्वर्स हो जाएगा, इट विल बी लिटिल बिट क्लियर विद द बाय द एंड ऑफ द चैप्टर और बाय like while you will be completing 1 or 2 exercises, तो it would be very much clear कि हमने इस quantity को decrease करना था, इसलिए हमने we wrote it in this form. So I'm doing it like I'm writing decrease 77 by 11:8। अब इसमें ये ग्रेटर वैल्यू है रेशो की और ये स्मॉलर वैल्यू है, आपने निकालना डिक्रीज़ है। तो डिक्रीज से आपने आप ये भी सेल में रख सकते हो डिक्रीज वैल्यू द लेस वन द स्मॉलर वन आपकी आएगी न्यूमिनेटर में। ये अब आपने जेन में रखना है, न्यूमिनेटर से ही कनेक्शन आप इसका जेन में रख सकते हो। और यहाँ पे आपके पास आ गया ग्रेटर वैल्यू। इन केस ऑफ इंक्रीज क्या किया था आपने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई किया था, पहले यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू और फिर यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिर उसको रिड्यूस कर दिया था। तो दिस बिकम्स 56। सो दिस इज़ वेरी मच ईजी इफ़ यू जस्ट रिमेंबर इट। और अदरवाइज़ आप ये देखें 77 को आपने लाइक यहाँ पे अगर 77 बनाना है, लाइक फॉर फर्दर डिटेल इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्वेश्चन, लाइक आपने डिक्रीज करना है 77 को। आई एम जस्ट टेलिंग इट्स फर्दर सोल्यूशन। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 77 है, 77 कैसे आएगा 11 से 7 टाइम्स करके, और इसी तरह से रेशो का रूल है, अगर आप एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर के साथ, तो आपको दूसरी रेशो को भी उसी से दूसरी क्वांटिटी को भी रेशो की उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसे भी आ जाएगा। बट अभी माइट बी यू आर नॉट एबल टू गेट इट लाइक वेरी मच, बट विद टाइम यू विल बी वेरी मच क्लियर कि ये डिक्रीज और इंक्रीज को कैसे आप रेशो से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आप डिक्रीज इस तरह से निकालेंगे कि आपने स्मॉलर वैल्यू न्यूमरेटर में रखनी है फ्रैक्शन की, और ग्रेटर वैल्यू आपने डिनोमिनेटर में रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 सेज, दिस इज द सेम वन। अच्छा, इसमें फिर आपको नाउ अगेन यू आर सपोज टू कैलकुलेट इंक्रीज। व्हाट इंक्रीज 39 kg बाय 3:7। अब इसमें ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है। अब आपने 39 द गिवन नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विद द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज द ग्रेटर वन, यही हमने जहन में रखना है, एंड डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर वन। तो अब आपके पास आ गया यू आर गेटिंग 91 kg फ्रॉम हियर। आपने इंक्रीज करना था 39 को किस रेशो में, लाइक इट वॉज विद द रेशो 3:7। इस रेशो से आपने मतलब 3 के रेशो से बढ़ा के आपने इसको 7 रेशो पे लेके जाना था। तो ये बन गया 91 kg, 3 रेशो से बढ़ा के 7 रेशो पे आ गया, तो ये बिकम्स 91 फ्रॉम हियर। तो बस फॉर द टाइम बीइंग और फॉर द सोल्यूशन आपने ये ज़हन में रख लेना है कि गिवन नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ जिसमें आपके पास रेशो की greater number in the numerator and the smaller number in the denominator. Now decrease 15 kilometer by 6:15, ये करना है। अब अगेन हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं कि 15 को आपने 6 रेशो से डिक्रीज करना है, और अभी ये 15 है।
तो अब आप ये देखो, इसमें सिंपली ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है। तो डिक्रीज कैलकुलेट करने के लिए आपने गिवन नंबर को, ये आपका गिवन नंबर क्या है 15 है, गिवन नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है फ्रैक्शन के साथ जिसमें आपके पास न्यूमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉल, सॉरी ये डिक्रीज है, इंक्रीज होता तो यही वाला केस होता, बट राइट नाउ दिस इज डिक्रीज। तो डिक्रीज में आपने न्यूमिनेटर को स्मॉलर रखना है और डिनोमिनेटर को ग्रेटर कर देना है। न्यूमिनेटर क्या है अब आपके पास, न्यूमिनेटर 6 बनेगा और डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू, बट इन केस ऑफ इंक्रीज यहाँ पे आपने ग्रेटर वैल्यू और यहाँ पे आपने स्मॉलर वैल्यू, ये रिड्यूस हो गया एंड योर फाइनल आंसर कम्स 6। तो 6 किलोमीटर आपके पास बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन का एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन के विल द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, द अदर वन इज डिक्रीजेस और द अदर वन इज इंक्रीजेस। तो आपने उसको, उस बात को भी जहन में रख लेना है। तो विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल. What question number 4 says,